Good afternoon, class. Class, kindly confirm is I am audible to you all. Yes, sir. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you, class. So yesterday we have discussed about exceptional handling. Today we'll continue from the checked and unchecked exception. Okay. So why we need exception handling? Just to avoid the situation when an unexpected event can close our application. An unexpected event can close our application. So giving you demonstration like yesterday also I asked you to for a demonstration. Let's see what happens if I try to run my computer calculator. Okay. If I try to divide a number by zero, let's see what happens with this application. Okay. So it gives a simple cannot divide by zero. So the person or the team that developed this application has properly handle this particular exception, and they have given us a message cannot divide by 0. So we can also, if we are designing a calculator application, we can also take that thing in consideration. If we are not taking this thing in consideration, then this will be the uh, this will be said to be a bad programming practice. Okay, so you are not visualizing all the possibly arise cases. So let's start from the yesterday we have discussed till hierarchy. So let's start from this particular checked and unchecked exception. Okay. So let me guide you कि ये checked exception क्या होता है. Checked exceptions क्या होते हैं. Exception which are checked by compiler for smooth execution of the program at runtime are considered as checked exception. Okay. तो ये जावा में कंपाइलर will check for all the checked exception that developer is providing the handler. Okay, कि डेवलपर भैया हैंडलर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो ऐसे एक्सेप्शन कंपाइलर चेक करता है किसके लिए, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए, दैट डेवलपर इज प्रोवाइडिंग एक्सेप्शन, providing the handler for the exception. If not, then compiler will give you compile time error. Okay, that your code will not compile without this particular handler. If you are using like we are in the demonstration, we'll try to use some of these exception where we want to write some command where we need checked exception. Okay, so
If I ask you what are checked exceptions, then checked exceptions are the exception which are checked by the compiler for handler during the compile time. Okay, because exception arise during the runtime only, but compiler will check whether the developer is providing a handler for all the checked exception. ओके, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करता है, कौन सा स्टेटमेंट चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट करता है? मोस्टली क्या होता है भैया, मोस्टली वी यूज लाइब्रेरी methods, okay, and those methods will declare in their signature about all the exception or exceptions they can throw. Okay, so they can throw all the exception they can throw. जितने भी एक्सेप्शन थ्रो करेंगे वो कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे? मेथड के सिग्नेचर में. अगर आप अपना भी कोई मेथड बना रहे हैं और वो एक्सेप्शन थ्रो करता है तो आपको वो मेथड सिग्नेचर में बताना चाहिए. एज ऑफ नाउ हमने इसकी बात क्यों नहीं की? एज ऑफ नाउ हमने इसकी बात क्यों नहीं की? देखिए, हमने मेथड सिग्नेचर की बात की थी और बताया था आपको भैया एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं. ओके, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, देन प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है भैया, देन रिटर्न टाइप होता है, मेथड नेम होता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं. ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट. अगर आप नहीं भी लिखते हैं एक्सेप्शन के बारे में तो भी आपका मेथड बन जाता है. सॉरी, सॉरी क्लास. अगर आप एक्सेप्शन के बारे में नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका एक्सेप्शन, आपका मेथड बन जाता है. बट अगर लिखना चाहें तो कहाँ लिखेंगे? तो भैया इसकी पोजीशन तो यही रहेगी, ये भी यही रहेगा, ये भी यही, ये भी यही, आर्ग्यूमेंट भी यही. देन यू विल डिक्लेयर थ्रोस. ओके, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? थ्रोस. एंड देन यू विल गिव नेम, more precise, class name of exception, class name of exception, that this method is going to throw this particular set of exceptions. And then method की body start होगी, method की body start होगी. okay, so इसका क्या मतलब है कि भैया ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आ सकता है. ये हम देखेंगे भैया कल के इम्प्लीमेंटेशन में. कल जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें हम इसको विजुलाइज करेंगे. ओके, सो अभी तो इसको हटा देते हैं. तो चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होते हैं जिनके लिए कंपाइलर हैंडलर को चेक करेगा ड्यूरिंग कंपाइल टाइम कि आपने उनको हैंडल किया है कि नहीं. अब बात कर लेते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन की. एक्सेप्शन विच आर नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर whether programmer handling on handling or not, these exceptions are considered as unchecked. Means for unchecked exceptions compiler will not check for handler. Okay class, compiler will not check for handler. ओके, चेक ही नहीं करेगा तो कंपाइल टाइम एरर देने की यहाँ पे बात नहीं होती है. मूविंग फॉरवर्ड, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं. एवरी एक्सेप्शन ऑकर्स एट रन टाइम वेदर इट्स चेक्ड और अनचेक्ड. कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन को चेक नहीं करता है, वो क्या चेक करता है? वेदर द डेवलपर और द प्रोग्रामर इज प्रॉपरली
is properly handling the particular exception or not. Okay, so there's no chance of acquiring any exception at compile time. Okay, तो कोई भी चांस नहीं है आपको कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन जनरेट करने का, सिर्फ आप हैंडलर को चेक कर सकते हैं. ओके तो सर. कौन से एक्सेप्शन अनचेक्ड रहेंगे? ऑल द रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स सब क्लासेस. ओके, तो रन टाइम एक्सेप्शन खुद और उसकी सारी सब क्लासेस as well as all the errors of the instance of error and its subclasses, okay, are unchecked exception. Apart from this, except these exception, all the remaining are checked exception. Okay, so उनके लिए आपको हैंडलर प्रोवाइड करना. सॉरी जी, म्यूट कर लीजिए प्लीज. रोल नंबर 60 म्यूट कर लीजिए प्लीज. चलें, एक्सेप्ट दीज रिमेनिंग आर चेक्ड एक्सेप्शन. इनको छोड़ दें तो बाकी सारे क्या हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस हैं. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट ट्राई कैच, जो कि हमने कल भी किया था डिटेल में डिस्कस, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो विल सी कि भैया ट्राई में क्या करेंगे. एनी पार्ट ऑफ द कोड दैट कैन जनरेट एन एरर शुड बी पुट इन द ट्राई ब्लॉक्स. मतलब आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लगता है जिससे एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो वो कहाँ लिखेंगे हम? ट्राई ब्लॉक के अंदर. वो कहाँ लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक के अंदर. एनी एरर शुड बी हैंडल्ड इन दी कैच ब्लॉक डिफाइंड बाय दी कैच क्लॉज. तो कभी कभी क्या बोलते हैं, जो कैच ब्लॉक होता है उसमें ये जो चीज लिखी रहती है कैच, इसको कैच क्लॉज बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? कैच क्लॉज विद कर्ली ब्रेसेस. इसको पूरे को कैच ब्लॉक बोलेंगे. कैच और वो टाइप ऑफ एक्सेप्शन और नेम ऑफ एक्सेप्शन, उसको हम क्या बोल देंगे भैया? कैच क्लॉज. ओके, एनी एरर शुड बी हैंडल्ड इन द कैच ब्लॉक डिफाइंड बाय द कैच क्लॉज. तो हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे? कैच ब्लॉक के अंदर सारी हैंडलिंग, मतलब करेक्टिव मेजर्स लिखेंगे. वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट टू योर एप्लीकेशन. Sometimes the catch block is also called the catch block is also called exception handler, और आप इन जनरल हैंडलर भी बोल सकते हैं, बट मोर प्रिसाइज अच्छा रहेगा कि आप बोलें एक्सेप्शन हैंडलर. तो कैच ब्लॉक क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलर भी, like you can also call catch block as an exception handler. Okay, the corrective action to handle the exception should be put in the catch block. Any statement you want to display to the user or want to do the corrective measures, then those statements must be put in the catch block. Okay, so before this we have discussed yesterday only. Again we are going to discuss try block है, और ये इसके लिए कैच ब्लॉक बना दिया है आपने. और यहाँ मैं बोल देता हूँ टाइप exception 1. I am not writing any name over here. Okay, अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन अराइज हुआ तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा कैच को. ओके, और एक्सेप्शन अलाउ नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, कैच ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा. इज दिस ओके? चलें, moving forward with an example how to handle an exception. Okay, यहाँ पे देखिए, we have created a simple class, public class exception example. This class contains a main method. In this main method we are performing a mathematical operation. Okay, in this particular method we are performing a mathematical operation, and this operation will result in an exception. This will generate an exception. Okay, और ये एक्सेप्शन क्या होगा भैया? ये एक्सेप्शन क्या होगा? ये जनरेट एन एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया. ओके,
एक्सेप्शन क्लास बोलने की जगह हम थ्रोएबल भी बोल सकते हैं। थ्रोएबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्सेप्शन का, और वो कहाँ चला गया, दैट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन टू द कैच ब्लॉक, दैट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन टू द कैच ब्लॉक। यहाँ पे अभी एक ही कैच ब्लॉक है, तो इसी कैच ब्लॉक को कंट्रोल ट्रांसफर होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा। ये हमने यहाँ पे करेक्टिव मैसेज लिखा है, मतलब हमने जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करा दिया, उस ऑब्जेक्ट को क्या करा दिया हमने, प्रिंट करा दिया है। बाय प्रिंटिंग दिस ऑब्जेक्ट यू विल गेट दी two string representation of this object, you will get the two string representation of this object। जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कस्टम एक्सेप्शन, तब हम एक्सप्लोर करेंगे थ्रोएबल क्लास के कुछ मेथड को, एक्सेप्शन क्लास के कुछ मेथड को, कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हैं उनकी बात कर लेंगे। ओके, this exception is generated automatically, this exception is generated automatically। किसके कौन करता है भैया, जावा रन टाइम सिस्टम, जावा रन टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। सो सारे अनचेक्ड जो हैं, सारे अनचेक्ड जो हैं वो ऑटो जनरेट हो जाते हैं। ओके, सारे अनचेक्ड क्या हो जाते हैं, ऑटो जनरेट हो जाते हैं। बहुत सारे चेक्ड एक्सेप्शन भी हैं जो ऑटो जनरेट हो जाते हैं। मींस जावा की लाइब्रेरी में जितने भी अवेलेबल हैं वो सब ऑटो जनरेट हो जाएंगे एज पर दी कंडीशन, एज पर दी कंडीशन। ओके, then after this catch block, when this catch block executes completely, the control will exit from this point। और अगर आपने और कुछ कोड लिखा है तो वो कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, that code will going to execute। बट अगर आपने हैंडलर नहीं लिखा होता, हैंडलर नहीं लिखा होता, ट्राई के अंदर इस स्टेटमेंट को नहीं लिखा होता, तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता, आपका प्रोग्राम क्या होता, क्लोज हो जाता, and the rest of the statement will not be printed। okay, the rest of the statement will not be printed। अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आता तो कैच ब्लॉक नहीं चलता, बट रेस्ट ऑफ द कोड विल एग्जीक्यूट सिमिलरली। ओके, कि वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आती। सो दिस एन सिंपल एग्जांपल। हम जो भी स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, पोटेंशियल है, उसको कहाँ लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, नाउ कैन मल्टीपल catch statement can be called, yes, by practice you will understand, Ritik, by practice you will understand, by Okay, sir. looking at the signature, looking at the signature, what happens when we try to use some method, when we try to use some method, we'll understand, we'll go through the documentation, and in the documentation the exception which that method is going to throw is written। Okay, Yes, sir. let me check, let me give you an insight of that also, give me a minute, I will give you an insight, try to give you an insight of that particular thing also। Going to the documentation, looking for a scanner class। Okay, going for some method and then we'll start। Let's see, this is the description of next int method, whatever the description written over here, it's showing throw input mismatch, throws input mismatch exception, no such element exception, illegal state exception। okay, Yes, sir. depend on the different condition। देखिए यहाँ पे मेंशन है, if you want to use this method you will go through the documentation and you will be aware of all these exceptions, all this exception, कि भैया इस क्लास का ये एक्सेप्शन क्लास है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इस क्लास का एक इंस्टेंस मुझे मिलेगा अगर मैंने इंटीजर मांगा है और किसी ने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी है।
ओके, Yes, तो sir. क्या मिलेगा मुझे? इनपुट Input mismatch मिसमैच exception. एक्सेप्शन। ओके, तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा जस्ट बिकॉज दिस एक्सेप्शन इज ऑफ चेक्ड टाइप, अनचेक्ड टाइप। ओके, तो इसके लिए हमारे को कंपाइलर कभी भी फोर्स नहीं करता। नहीं तो मैं जब आपको नेक्स्ट इंट पढ़ाता और अगर ये चेक्ड एक्सेप्शन होता तो मैं पहले आपको बताता एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, चलें बैक टू अवर पीपीटी, बैक टू अवर पीपीटी। मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। सो क्या एक ट्राई के आफ्टर अ ट्राई एक ट्राई के बाद मल्टीपल कैच आ सकते हैं? यस, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट आ सकते हैं भैया, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आ सकते हैं। लेकिन उन मल्टीपल में से एग्जीक्यूट कौन सा करेगा? सिर्फ एक। उस मल्टीपल में से एग्जीक्यूट कौन सा करेगा? सिर्फ एक। A single block of code can raise more than one exception, ट्राई के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सेप्शन जनरेट करें, इट कैन जनरेट मोर एक्सेप्शन। You can specify two or more catch clauses, each catching different type of exception. So आप more than one catch clause लिख सकते हैं और उनके अंदर क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन होंगे। जब ये काम करते हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि जो कैच ब्लॉक है यहाँ पे बेस क्लास कभी नहीं आनी चाहिए, है ना? बेस क्लास। अब ये बताइए कि जावा के एक्सेप्शन हिरार्की की बेस क्लास कौन सी है? थ्रोएबल। ओके, तो थ्रोएबल कभी भी डिक्लेयर मत करिएगा यहाँ। अगर ऐसा डिक्लेयर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है? जो अगला कैच क्लॉज है, मान लीजिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ, वो भी इससे मैच हो जाएगा। ओके, इनपुट मिसमैच हुआ, वो भी इससे मैच हो जाएगा, सारे के सारे अपनी पेरेंट क्लास से मैच हो जाएंगे। एंड दिस पार्ट ऑफ कोड विल बिकम अनरीचेबल। अनरीचेबल मतलब इसके पास तक कभी कंट्रोल जाएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं बचा है। सो हम क्या करते हैं, जो पहला कैच ब्लॉक होता है उसमें सबसे लोअर लेयर मतलब लोअर लेयर यानी लोअर इन दी हायरार्की, वो वाला एक्सेप्शन लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, या सिमिलर लेवल पे ही सारे हैं तो कोई भी कहीं भी लिख दो, बट हायरार्किकल लेवल अगर चेंज है तो हम बेस क्लास सबसे ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर हमारी मजबूरी है कि हमको बेस क्लास भी लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन भी आ सकता है जिसको हम विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, तो सबसे एंड में आप क्या मेंशन कर दें? बेस क्लास। सबसे एंड में आप क्या मेंशन कर दें? बेस क्लास। तो क्या होगा, वो सारों से मैच करेगा और फिर बेस क्लास पे चला जाएगा। ओके, तो बेस क्लास सबसे ऊपर नहीं लिखनी, नहीं तो अनरीचेबल कोड आ जाएगा। चलें, सो डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन आप बता सकते हैं इन टू और मोर कैच क्लॉज, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप प्रोसेस समझ लेते हैं। व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, कि वो कौन से कैच ब्लॉक में जाएगा। ईच कैच स्टेटमेंट इज इंस्पेक्टेड इन ऑर्डर एंड द फर्स्ट वन हुज टाइप मैचेस द एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ये ट्राई था, ट्राई में किसी स्टेटमेंट से एक्सेप्शन आया, हमने सबसे पहले इनपुट मिसमैच लिखा था, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन लिखा था। दूसरे कैच क्लॉज में हमने लिखा था कैच एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ओके, दूसरे कैच क्लॉज में हमने ये चीज लिखी थी। अब जब एक्सेप्शन आया तो क्या करेगा? ईच केज स्टेटमेंट इज इंस्पेक्टेड, पहले इसको इंस्पेक्ट करेगा, मैच नहीं हुआ तो आगे पे जाएगा, मैच हुआ तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट पे जाएगा। जब कोई एक कैच क्लॉज या कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, आफ्टर वन कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स द अदर बायपास्ड एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यू आफ्टर द ट्राई कैच ब्लॉक। मतलब
एक ट्राई के साथ आपने 50 कैच लिखे थे, उनमें से एक एग्जीक्यूट होगा, रेस्ट 49 विल बी स्किप्ड, रेस्ट 49 विल बी स्किप्ड एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर बैक टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट कैच क्लॉज, आफ्टर द लास्ट कैच क्लॉज. ओके, सो एक्सेप्शन जब भी थ्रो होता है, हर एक कैच स्टेटमेंट से मैच करते हैं, इंस्पेक्ट करके मैच करते हैं, मैच मिल जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रेस्ट ऑफ दी एग्जीक्यूट नहीं होते. नाउ वी लुक इनटू एन एग्जांपल, जहां पे हम मल्टीपल कैच क्लॉज को देखेंगे, ट्राई के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट देखेंगे जिनसे एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, ओके. So here what we are doing, we are creating a class A public static void main. यहाँ हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, स्कैनर फॉर यूजर इनपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमको चाहिए हैं. नाउ व्हेन आई कॉल sc डॉट नेक्स्ट इंट, तो मेरे को कौन सा एक्सेप्शन मिल सकता है, इनपुट मिसमैच. मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर दो और तुमने न्यूमरेटर लिख दिया ten, तो जब इसको नेक्स्ट इंट रीड करेगा वो बोल देगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन. ओके, अगेन द नेक्स्ट इंट, यहाँ पे भी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ सर सकता है. अगर इंट की रेंज उसने ज़्यादा डाल दी, इंट की रेंज से ज़्यादा वैल्यू डाल दी तो बेटा वो तीसरा वाला जो पढ़ा था ना, वो वाला एक्सेप्शन हाँ. आएगा, ओके है सर. ना, आउट ऑफ रेंज वाला आएगा. ठीक यस है, सर. हमेशा इनपुट मिसमैच आएगा जब स्ट्रिंग डाल दिया है, रेंज के बाहर डाल दिया है. तो अभी हम एक्सेप्शन पढ़ने गए थे, शायद दिख जाए, इलीगल, ये रुकिए, नो सच, अच्छा ये आउट ऑफ रेंज के लिए भी इनपुट मिसमैच ही आने वाला है बेटा, है ना. यस सर. इफ द नेक्स्ट टोकन डज नॉट मैच द इंटीजर रेगुलर एक्सप्रेशन और इट्स आउट ऑफ रेंज, लॉन्ग डाल दिया है तो भी यही आने वाला है, इनपुट मिसमैच ही आने वाला है. और ओके. आना भी इसलिए चाहिए क्योंकि आप इनपुट मांग रहे हैं इंटीजर और वैल्यू डाल रहे हैं लॉन्ग. ओके, यस सर. चलें. बी एच डॉट नेक्स्ट इंट, सेम चीज आ सकती है, राइज हो सकती है. रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है. क्या आ सकता है, अरिथमेटिक. ये सारे के सारे अनचेक्ड हैं भैया. अभी तक हमने जब भी ऐसा काम किया था हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की थी. ओके, जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन आएगा, जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन जनरेट होगा, वो वाली लाइन के बाद का कोड ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूट नहीं होगा. मतलब लाइन 1 पे आ गया, यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आ गया इस पर्टिकुलर, तो ये सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे, और कंट्रोल सीधे कहाँ ट्रांसफर आ जाएगा, कैच ब्लॉक में. कैच ब्लॉक में, विद द एग्जैक्ट मैच. ओके, ठीक, विद द एग्जैक्ट मैच कैच ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाएगा. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देखिए, एक कैच ब्लॉक, दो कैच ब्लॉक, मैं सेम टाइप के लिए दूसरा कैच क्लॉज नहीं लिख सकता. इनपुट मिसमैच के लिए मुझे दो लिखने की जरूरत नहीं है. अब इनपुट मिसमैच का जब एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो वो पहले इस वाले कैच ब्लॉक पे आएगा, सीरियल ऑर्डर में मिल जाएगा उसको ये, तो इस यस सर. वाले कैच क्लॉज में आएगा एंड देन इट विल कंपेयर विद दिस एक्सेप्शन. जब मैच नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अगले कैच ब्लॉक पे चला जाएगा, और यहाँ पे मैच मिलेगा मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा. लेकिन ट्राई ब्लॉक के बचे वाले स्टेटमेंट को क्या एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो ट्राई ब्लॉक के बचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ओके, सो this is multiple catch example, now here's a small quiz, a single question quiz, you can go through it. देखिए, what will be the result if we try to compile and execute the following code. ओके, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कमांड है जावा प्रोग्राम नेम, और ये क्या है 100. यस 100 है क्या वो, कमांड लाइन आर्गुमेंट इनपुट है सर. यस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इनपुट है. अब आप
भैया देखिए क्या होगा, ये तो हो गई आपकी क्लास, ये मेन मेथड ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने इंटीजर डॉट पारसेंट लगाया, ARGH 0 के पास वैल्यू क्या होगी 100। 100, और 100 कहाँ स्टोर हो जाएगी, पार्स होके, 100 स्ट्रिंग फॉर्म में थी, पार्स होके आई में स्टोर हो गई, फिर क्या हो जाएगा भैया, प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो प्रिंट हो जाएगा। जाएगा, ये है ना 100 प्रिंट हो गया। फिर क्या आया, एक्सेप्शन तो था नहीं, तो ट्राई ब्लॉक एग्जिट कर जाएगा सारे स्टेटमेंट के बाद, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, विप्रो यस सर। कैच पे जाएगा, नहीं जाएगा, अगर एक्सेप्शन होता तो जाता, और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ओके, यस सर। सो इट्स एन स्मॉल क्विज। नाउ लुक एट द असाइनमेंट, जो असाइनमेंट मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज गो थ्रू इट, यू हैव टू सॉल्व। अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, देन उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। तो भैया करना क्या है यहाँ पे, गेट द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड पार्स इट टू इंटीजर। अब इनपुट स्ट्रिंग लेनी है यूजर से, अब आप इनपुट स्ट्रिंग लेना चाहते कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में ले लें या स्कैनर में ले लें, लेकिन इनपुट क्या लेना है, एज एन स्ट्रिंग फॉर्म। देन आपको क्या करना है, इफ इट्स नॉट अ नंबर इट विल थ्रो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है भैया, अगर नंबर नहीं है तो क्या थ्रो करना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा। देन वी हैव टू कैच इट एंड प्रिंट entered input is not a valid format of an integer। अगर एक्सेप्शन आता है तो ये काम करना है, नहीं आता है सो वी हैव टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, वी हैव टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। नंबर। अब यहाँ आपको मिल गया इंटीजर, एंड इंटीजर आपने वैल्यू डाली 12, द स्क्वायर वैल्यू इज 144। ओके, सैंपल 2 में आपने जावा डाली, आपको क्या आउटपुट मिल गया, एंटर्ड इनपुट इज नॉट अ वैलिड फॉर्म फॉर एन इंटीजर। ओके, यस सर। चले भैया, अब कस्टम एक्सेप्शन की बात हम आज नहीं करेंगे, हम कल के लेक्चर में करेंगे। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, अभी हम क्या देख लेते हैं भैया, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इंटेलिजे यूज करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम रखा है हमने 2G एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, creating the Git repository। In SRC what I am going to do, I am going to create a Java class, और इसका पैकेज का नाम है मेन, इसको मेन पैकेज में रख रहे हैं, और इसका नाम दे रहे हैं हम डेमो एक्सेप्शन। ठीक है भैया, काम क्या करने वाले हैं, डेमोस्ट्रेट यूज ऑफ, डेमोस्ट्रेट एक्सेप्शन हैंडलिंग by using try, catch and finally। okay, try, catch and finally। I'm going back to my PPT, I'm going back to my PPT to the try catch block, to the try catch block part। okay, I have to add some point over here, I have to add some point over here। तो देखिए भैया, ट्राई में का एक्सेप्शन आया तो कैच एग्जीक्यूट होगा। ओके, ट्राई में अगर एक्सेप्शन आया तो क्या होगा, कैच विल
एग्जीक्यूट. व्हाट अबाउट फाइनली? ट्राई में एक्सेप्शन आया, कैच एग्जीक्यूट होगा, फाइनली विल एग्जीक्यूट. ओके, ट्राई में नॉट एक्सेप्शन बोल देता हूँ, चल जाएगा. नॉट एक्सेप्शन तो क्या चलेगा, सिर्फ फाइनली. एंड इन बिटवीन ट्राई और फाइनली के बीच में कोई भी कोड होगा आउट ऑफ द स्कोप, वो भी चल जाएगा. आउट ऑफ द स्कोप वो भी चल जाएगा. ओके, ओके सर. ट्राई मस्ट बी फॉलोड बाय कैच और फाइनली. ठीक है भैया, ट्राई कैच या फाइनली से फॉलोड होना चाहिए. लास्ट पॉइंट, कैच एंड फाइनली will not come without try. Okay, so this I want to add. मतलब एक्सेप्शन आया तो मल्टीपल कैच ब्लॉक हुए तो मल्टीपल में से कोई एक चल जाएगा और देन फाइनली चलेगा. सिंगल कैच ब्लॉक है तो वो सिंगल कैच ब्लॉक चलेगा एक्सेप्शन आने पे, देन फाइनली विल रन. ओके, मल्टीपल कैच ब्लॉक है और एक्सेप्शन नहीं आया है तो भी फाइनली चलेगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग. चलें अब जल्दी से एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं. हमें यहाँ पे मेन मेथड चाहिए भैया. हमें यहाँ क्या चाहिए, मेन मेथड. ओके, इन दिस मेन मेथड विल क्रिएट न्यूमरेटर, will create denominator and will create result. We need a scanner for giving the input to the numerator and denominator. Now we want to enter a message. Enter a numerator. अब न्यूमरेटर आने वाला है तो उसको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. डिनोमिनेटर से पहले एस आउट, एंटर. गड़बड़ी करना. ओके, एंटर डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा भैया, डिनोमिनेटर में चला जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कैलकुलेट ट्राई. चले पहले ट्राई लगाने से पहले देखते हैं कि प्रोग्राम के साथ क्या होने वाला है. अगर मैं कर दूं रिजल्ट इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एस आउट, रिजल्ट इक्वल्स कितना आएगा भैया, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट फील्ड से. कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट फील्ड से. कोड में कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है. नो सर. चले अब हम क्या करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट एनालाइज कर लेते हैं. हम इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट एनालाइज कर लेते हैं. अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है. ओके, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम वैल्यू देते हैं तो क्या रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है. 10 डिवाइडेड बाय 5, न्यूमरेटर 10 डिनोमिनेटर 5, रिजल्ट 2. ओके, चलिए अब हम दोबारा रन करते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 0. देखिए आपकी एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड लिख के दिखा दिया. एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड लिख के
दिखा दिया, आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया, आपका प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश हो गया। ओके, नाउ क्या करें हम, एक्सेप्शन हैंडलिंग, किस लाइन से एक्सेप्शन आया, चलिए कैसे पता चलेगा ये किस लाइन से एक्सेप्शन आया वो भी देख लेते हैं। ये लिखा है डेमो जावा 22, ये रही 22 नंबर की लाइन, इसको कहाँ डालना है हमको, ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में, ट्राई। ओके, नाउ व्हेन आई क्रिएटेड द ट्राई ब्लॉक आई एम गेटिंग एन एरर, क्या एरर देखेंगे हम, कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड, मतलब आप कैच ब्लॉक बनाओ। चले कैच ब्लॉक कैसे बनाते हैं, कैच लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं, टाइप ऑफ एक्सेप्शन लिखते हैं, हमें मालूम है इस स्टेटमेंट से अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, और ऑब्जेक्ट का नाम हम ई लिख देते हैं। अब एक्सेप्शन के केस में आपने बहुत पुरानी प्रैक्टिस है कि ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस होता है उसका नाम हम लिखते हैं, या तो उसका नाम हम लिखते हैं ई या ई एक्स, कुछ टेक्स्ट में ई एक्स लिखा रहता है, कुछ टेक्स्ट में ई लिखा रहता है, आपकी जो मर्जी आप नाम लिख सकते हैं, बट दिस विल रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। तो हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच किया, अब हमको यहाँ क्या लिखना है, करेक्टिव मेजर वन थिंग, और ये कैच हमारा क्या है, कैच हमारा क्या है, एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, और करेक्टिव मेजर लिख लेते हैं, करेक्टिव मेजर क्या होगा, देखो मैं मेरा कंट्रोल यहाँ कैच ब्लॉक से वापस ट्राई ब्लॉक में नहीं ले जा सकता, कैच ब्लॉक से वापस ट्राई ब्लॉक में नहीं ले जा सकता, तो मैं लिख देता हूँ एस आउट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ओके, डिनोमिनेटर हम क्या नहीं कर सकते भैया, जीरो नहीं कर सकते, दैट्स ऑल, ये मेरा करेक्टिव मेजर है। ओके, अब देखिए क्या होगा, ट्राई चलेगा, एक्सेप्शन आया तो कैच चलेगा, और ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट, हेलो विशेष, व्हाई आर यू होस्ट? अरे विशेष को तो खुद ही होश नहीं है। विशेष क्या कर रहा है यार, जावा पढ़ाओ यार। पहले वो सुने तो सही। गलत आदमी होस्ट बन गया है। अरे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होंगे क्या यार? हाँ, सुनने में तो आ रहा है, कॉलेज बुला जनवरी में के होंगे लेंगे शायद। एग्जाम। ऑनलाइन ले लिया कि कंटक काटे यार, फालतू बढ़ा रहे हैं बर्डन। सेकेंड ईयर का, सेकेंड सेमेस्टर का लगता है कि एग्जाम देगा कोई बच्चा। देंगे यार, देखिए सब देंगे। कोई भी ये भी नहीं भाई बोलेगा गलती से कि हमें नहीं देना। हमको तो भाई कुछ भी याद नहीं, पता नहीं क्या हुआ था मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिस्ट्री क्या होती है मुझे नहीं पता। अरे किसी को याद नहीं है कुछ, पढ़ाकू बच्चों को छोड़ के। सॉरी क्लास गॉट एन डिस्कनेक्शन।
सॉरी, वो कोड वहीं पे हमने खत्म कर लिया है बेटा, यू ऑल कैन लीव। हमें एक्सेप्शन जो मिल गया है, हमने देख लिया कि कैसे हैंडल करना है एक्सेप्शन को, कैसे हैंडल करना है। ये कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा। ये कोड आपको कहाँ से मिल जाएगा? गिटहब से। गेटअप से। तो थैंक यू क्लास, विल सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम कस्टम एक्सेप्शन की बात करेंगे, थ्रोएबल क्लास की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। गुड डे बेटा। थैंक यू। ओके क्लास, आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।